کرناٹکا گلبرگہ شہر کے مشہور سیاسی و سماجی شخصیت ساجد علی رنجھولوی کو ان کی بے لوث خدمات کے عوض میں ڈاکٹریٹ ایوارڈ ہونے پر صابر چودھری، باغبان شفیع احمد عرف شبو اور محمد خواجہ گیسو دراز نے شال پوشی، گل پوشی اور مومنٹم دے کر تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر سینئر صحافی عزیز اللہ سرمد، ڈاکٹر عبدالکریم، بشیر عالم، محمد وحاج الدین پٹیل، صادق علی، بابو انصاری اور گرافکس ڈیزائنر معظم موجود تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں تفصیلی رپورٹ۔ بیورو رپورٹ اطراف ٹی وی اردو نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا گنبد والے، ایسا گنبد والے، منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے، دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ محبوب الہی سا کوئی نہیں دیکھا، یہ شان ہے ان کی کہ سایہ بھی نہیں دیکھا۔ السلام علیکم۔ شخصیت جن کو ہم ساجد علی رنجھولوی کے نام سے یاد کرتے ہیں، بلاتے ہیں، بات کرتے ہیں، انہیں جیسا کہ سرمد صاحب نے کہا، دلی کے ایک ادارے نے خدمات کو دیکھتے ہوئے، ان کی بے لوث خدمات کو دیکھتے ہوئے، سماجی خدمات کو دیکھتے ہوئے، فلاحی و بہبودی کے کام کو دیکھتے ہوئے، دہلی کے ایک ادارے نے انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری تفویض کی ہے۔ اس ضمن میں اپنی جانب سے، دوست احباب کی جانب سے، سابقہ نائب صدر انتظامی کمیٹی جامع مسجد معراج کے تمام اراکین کی جانب سے جناب ساجد علی رنجھولوی صاحب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ نصیب ایسا ہو تمہیں دنیا میں عروج، نصیب ایسا ہو تمہیں دنیا میں عروج کہ آسماں بھی تمہاری رفعتوں پہ ناز کرے۔ شکریہ۔ دل کے اپنے گہرائی سے صابر چودھری صاحب اور شفیع صاحب سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاص اور یہ جو اعزازی جو ڈاکٹریٹ ملا ہے، اس کے لیے 1 سال سے میں اس کو فائل بنا کے اور اس کے جو سماجی جتنے بھی کام کرتے ہیں اس کی پورا فائل تفصیل بنا کے میرے سے منگوا کے انہوں پھر ایک میٹنگ کر کے تجویز کرے کہ ان کو ڈاکٹریٹ دینا چاہیے۔ تو آ کے لیتے ہیں یا جا کے؟ میں بولا جا کے لینے کو تھا میرے پاس گنجائش نہیں، مگر آپ بائی پوسٹ بھیج دیے۔ تو وہ لوگوں نے بائی پوسٹ بھیجا میں۔ تو اس سے ایک یہ ہوتا ہے کہ سماج کی خدمت والوں کو کبھی بھی نظر انداز کیا جاتا ہے، مگر سماج کی خدمت کو کرنے والوں کو بھی سراہنے سے کیا ہوتا ہے اور بڑھ چڑھ کے سماج کی خدمت کا بھی اور بھی کام کر سکتے ہیں اور لوگوں کی بھلائی کرنے کا ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے ڈاکٹر لکشمن دستی کو یہ بھی تجویز، ان کو بھی ڈاکٹریٹ کے میں پہلے فرسٹ آواز میں بلند کیا تھا اور وائس چانسلر کو جا کے میمورنڈم میں دیے تھے ہم لوگ۔ تو اس کے بعد ان کو اس کے بعد اب میں طرح طرح کے تنظیموں جو بھی دے رہے گورنمنٹ ریلیٹڈ ہے، کچھ
उनसे कांटेक्ट करके अपना जो भी बायोडाटा जो भी काम करे तो फाइल बना के देंगे। अगर उनको सेलेक्ट करें पसंद है तो आपको भी दे सकते हैं कि आप जो समाज में खिदमत करें उसका पूरा बाज़ाब्ता उसको फाइल बनाना चाहिए। और आली जनाब अज़ीज़ुल्लाह समद साहब के जो मशवरे हैं मैं तहे दिल से कबूल करता हूँ, और आइंदा जो भी बुलाए ना बुलाए मैं उसमें भी शिरकत करूँगा और उनके मशवरों का से अमल करूँगा। और हमारे ख्वाजा गुलजार साहब को भी हमेशा भी उन्होंने भी मशवरे देते हैं, उनके मशवरा मैं अमल करूँगा। मैं तमाम लोगों से शिरकत करूँगा तहे दिल से शुक्रिया। मजमूई तौर पर साजिद अली रंजोलवी साहब जो है मुख्तलिफ़ फील्ड्स में मुख्तलिफ़ शोबों में अपनी खिदमात बेलौस खिदमात मुखलिसाना खिदमात अंजाम देते रहते हैं। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि उन्हें उनकी खिदमात की शनाख्त करते हुए उनकी खिदमात को सराहते हुए दिल्ली के एक इदारे ने उन्हें एजाज़ी डॉक्टरेट से नवाजा है। हमारे शहर में भी इस तरह जो समाजी काम करते हैं, किसी भी शोबे में काम करते हैं, तो उनकी सलाहियतों का उनकी खिदमात का एतराफ़ होना चाहिए, लेकिन ऐसा रुझान बहुत कम पाया जाता है। और हम किसी की तारीफ़ के लिए कभी आगे आते ही किसी की सलाहियतों को सराहने का कोई मिजाज हमें पाया नहीं जाता। हालांकि ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी इंसान को अपने काम में और आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि उसकी हौसला अफजाई की जाए, उसकी सताइश की जाए। और सताइश या तारीफ़ का मतलब ये नहीं कि हम खुशामद, लोग इसको खुशामद का पहलू समझते हैं, हालांकि ये सरासर गलत बात है। जो है कि देखिए किसी भी शख्स को आगे बढ़ाने के लिए उसकी हौसला अफजाई करना, उसके कामों की सताइश करना बहुत ही अच्छा काम है, बल्कि अगर मैं कहूँ तो एक सुन्नत तरीक़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा लोगों की हौसला अफजाई फरमाया करते थे, लोगों की सलाहियतों की तारीफ़ किया करते थे। अगर हम सहाबा और औलिया की सवाने भी पढ़ेंगे तो उन्होंने भी हमेशा लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और जब तक हम किसी की देखिए कि कोई हमारी अगर रास्ते में पड़ा हुआ अगर कोई कंकर भी उठाता है या कांटा भी उठाता है तो वो उसकी तारीफ़ करना चाहिए, उसको सराहना चाहिए। तो किसी की मदद करना ये बहुत ही अच्छा काम है और उसकी तारीफ़ करने में क्या बुराई है, लेकिन हम किसी की सलाहियतों का हौसला अफजाई नहीं करते। और ख़ास तौर पर स्कूल कॉलेजेस में तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तलबा को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, उनकी सलाहियतों को नुमाया करने के लिए हमको उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। आज हम हर एक में खामियां ढूंढते हैं, बुराइयां ढूंढते हैं, लेकिन इंसान में अच्छाइयाँ भी होती हैं, लेकिन हमारी तवज्जो अच्छाइयों की तरफ, अच्छी सलाहियतों की तरफ बहुत कम जाती है। और हम इस कोशिश में होते हैं कि इस शख्स में क्या खराबी है, क्या खामी है, इसने कौन सा गलत काम किया है, उसका पता लगाकर उसको आम किया जाए। तो ये बहुत बुरी बात है। और देखिए कि हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गौसदराज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बंदों की ऐब जोई, बंदों में नुक्स निकालना, बंदों की बुराइयों को तलाश करना, बंदों की खामियों को तलाश करना, ये जो है ऐब जोई, बंदों की ऐब जोई जो है वो अल्लाह की ऐब जोई है। तो कितना बड़ा संगीन देखिए हम बात है ये, हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज ने कितनी बड़ी बात कही है कि हम बहुत मज़े लेकर, बहुत आसानी के साथ किसी की बुराई, किसी की ऐब जोई करते रहते हैं, लेकिन ये बात अल्लाह को सख्त नापसंद, नागवार होती है। तो सूफिया ने कभी भी किसी की बुराई, किसी की ऐब को आम करने का काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने पर्दा डालने का काम किया। और जो खिरखा जो सूफिया या खानखा में जो खिरखा पहनाया जाता है, उसका मकसद ही ये है कि लोगों की बुराइयों को, ऐब को छुपाया जाए और पर्सनल शख्सी तौर पर उसकी इस्लाह की जाए, आम लोगों में नहीं। ये खिरका क्यों पहनाया जाता है? ये असल में
मेराज की रात में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खिरका दिया गया था, वो आपने चारों अपने खुलफा को बुलाकर, सहाबा को बुलाकर पूछा कि तुम ये पहनकर क्या करोगे। हर एक से सवाल किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से, हज़रत उमर फारूक से, हज़रत उस्मान गनी से और हज़रत अली से। तो मैं अपने मौजू के मुताबिक हज़रत अली ने जो बात कही वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और उसको हुजूर ने पसंद फरमाया और खिलका भी उन्हीं को दिया। आपने पूछा कि ये पहनकर तुम क्या करोगे, हुजूर ने हज़रत अली से पूछा। हज़रत अली ने फरमाया कि मैं इसको पहनकर लोगों के ऐबों पर पर्दा डालूंगा, लोगों के ऐबों को छुपाऊंगा। तो ये बात हुजूर को इतनी पसंद आई, तो इसीलिए हम ये काम ना करें, किसी की ऐबजोई ना करें, बल्कि उसकी तारीफ व सताइश करें, उसकी कामों को सराहें। काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बड़ा काम करने पर ही तारीफ करना नहीं है, छोटे भी काम पर भी तारीफ व सताइश करना चाहिए। ये तरीक़ा अगर आज हम में आ जाए तो लोगों में मोहब्बत बढ़ेगी, खुलूस बढ़ेगा, एक दूसरे के दरमियान इख्तलाफात नहीं होंगे, एक दूसरे की कदरदानी होगी। हम जो आज हमारे पास इत्तिहाद की बातें बहुत की जाती, लेकिन इत्तिहाद उसी वक्त आ सकता है जब तक कि दो फर्द आपस में मुत्तहिद ना हो। दो फर्द आपस में मुत्तहिद उसी वक्त होंगे जब उनके दरमियान ऐबजोई, बुराई, ग़ीबत, एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे के मुकाबले में गलत सलत काम करने का ये जो रुझान हमें पाया जाता है, इसको जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे और तारीफ़ करना शुरू नहीं करेंगे, उस वक्त तक मोहब्बत नहीं बढ़ेगी, और जब मोहब्बत नहीं बढ़ेगी तो इत्तिहाद कायम नहीं होगा। तो आज जो ये काम साबिर अली चौधरी साहब ने किया, बहुत मिसाली काम है। गो के एक छोटा सा है, लेकिन हर शख्स में ये इनफरादी तौर पर हमारे काम करने के हैं, इज्तिमाई काम नहीं है। इनफरादी काम अगर हम इस तरह से करेंगे, मुस्बत काम अगर हम करेंगे, तो उसके बहुत अच्छे नताइज आएंगे और मोहब्बत बढ़ेगी। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address Bednakapom near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.